بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو نہ صرف پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ آپ کی طرف سے جو آراء آتی ہیں اس کی روشنی میں پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ ہم وقت متحرک ہے۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے صحت مند معاشرے کی تشکیل، اور اس کے حسب سابق دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت، اور دوسرے حصے میں ڈاکٹر محبوب رحمان آصف، سماجی رہنما، صدر روٹری کلب اور میڈیکل ڈائریکٹر رحمت رحمان میموریل ہاسپیٹل، وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور ان کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر رابعہ النساء آصف، گائنیکالوجسٹ اور الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، شاعرہ، ادیبہ، مصنفہ اور اینکر پرسن، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گی۔ گویا مسٹر اینڈ مسز مل کر اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں حافظ محمد صدیق سعیدی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں حافظ محمد صدیق سعیدی کو خوش آمدید کہنا چاہ رہا ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے روح رواں جو ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، اور یہ جتنے پروگرام ناظرین آپ تک پہنچتے ہیں اس میں عزیزہ محمد فرحان رفیق کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ وہ ایک ہمہ جہیز شخصیت کے نوجوان ہیں، پس پردہ رہ کر، کیمرے کے پیچھے رہ کر بہت کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس میں جو ٹیکنیکل مراحل ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ یقیناً ان سے عہدہ برا ہونا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کی جزا عطا فرمائے، تو وہ ہمارے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزہ محمد فرحان رفیق، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج کیمرے کے سامنے موجود ہیں، وگرنہ آپ عموماً کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حافظ محمد صدیق سعیدی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور عزیزم محمد فرحان رفیق ماشاء اللہ نعت خوانی اسکول کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، انہیں شوق ہے۔ تو عزیزم فرحان رفیق جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی فرحان، آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیف ایگزیکٹو مکس نیوز و ایڈیٹر بدلتا زمانہ سر اکمل وین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی موقع دیا کہ میں کیمرے کے سامنے آ کر نعت پیش کر سکوں، کیونکہ میں کیمرے کے بیک پر موجود ہوتا ہوں اور یہ ساری ریکارڈنگ اور باقی معاملات جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سر آپ کا بھی شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، اب میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا
کا روزہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حافظ محمد صدیق سیدھی، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. عزم فرحان رفیق، آپ ماشاء اللہ آپ نے یہاں بیٹھ کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، تو آپ دونوں حضرات کا ہمارے دیگر شکریہ. اور ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے گفتگو ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. بولے 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 دل بولے شمع. کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے. روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. کبھی ممی کا ہے دلال، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی. بولے دل کی بولیاں. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا. ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا. کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ. انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس.
ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? विज ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारा मौजू सेहतमंद मुआशरे की तश्कील, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महबूब रहमान आसिफ। आप समाजी रहनुमा भी हैं और रोटरी क्लब के सदर होने के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते रहते हैं। मेडिकल डायरेक्टर रहमत रहमान मेमोरियल हॉस्पिटल। और ये बात भी मैं यहाँ बड़े फ़ख्र के साथ करना चाहूँगा कि ये हमारे गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल के उन साबिका तलबा में से हैं जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया। तो मैं डॉक्टर महबूब रहमान आसिफ को खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, उनके साथ मोहतरमा डॉक्टर राबिया उन निसा आसिफ। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। अलावा जी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें बेशुमार जो खूबियां हैं उनसे नवाजा है, यानी वो शायरा, अदीबा, मुसन्निफ़ा और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बतौर एंकर पर्सन भी काम करती रही। तो डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, ये पहला मौका है हमारे किसी प्रोग्राम का कि जिसमें मिस्टर एंड मिसेज जो हैं वो दोनों यहाँ मौजूद हैं, और बतौर ख़ातून जो हैं वो हमारी मेहमान पहली दफ़ा यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। तो ये एक नई जहद है रमज़ान ज़ीशान की। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि रमज़ान ज़ीशान जो है वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे, और आपकी तरफ से जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है हम कोशिश करते हैं कि उस हवाले से जो है प्रोग्राम में तब्दीलियाँ की जाती रहें। अच्छा डॉक्टर महबूब रहमान, आपसे पहला सवाल ये है कि वो कौन से अवामिल हैं जो मिलकर एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील करते हैं? हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में आगाह कीजिए। सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पे भी और नफ्सियाती तौर पे भी, दोनों तौर पे सेहतमंद होंगे इंसान तो सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। उसमें कि जब कोई भी शख्स कोई भी माशरे में, बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, खातून हो, जो भी हैं, उनकी तरबियत अच्छी हुई भी है, नफ्सियाती तौर पे वो अच्छा सोचते हैं और जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हैं, तो वो सबसे बेहतर माशरा तश्कील पाता है। यकीनन। तो इसमें वालिदैन का कितना कलीदी किरदार है? किसी भी सेहतमंद माशरे में सबसे बेसिक, सबसे पहली सीढ़ी जो तरबियत की होती है वालिदैन, माँ की गोद और वालिद साहब की तरबियत, उसके बाद उस्ताज़ा का किरदार और मौलाना साहब, मौलवी साहब या मदरसे का। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों से ही माशरा तश्कील पाता है। अगर आपके वालिदैन हैं अच्छे, वो आपकी तरबियत कर रहे हैं, अच्छा उस्ताद मिल गया आपको, और जो जिन
मौलवी साहब से भी, जिनसे भी आप सिपारा पढ़ते हैं या जिन मदरसे में पढ़ते हैं, वो भी आपको अच्छा ज़हनी तौर पे आपकी अच्छी तरबियत कर पाते हैं, तो आप ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे सबसे अच्छा माशरा तश्कील देने में कामयाब हो जाते हैं। आपको कम्प्रिहेंसिव के असातिज़ा याद हैं? जी बिल्कुल, मुझे असातिज़ा याद है, और वो बहुत दूसरा दौर था। उस दौर में जितने भी टीचर्स थे, हमने अरबी पढ़ी, इस्लामियात, वुड वर्क, ड्राइंग, और हर चीज़ के लिहाज से वो मुकम्मल उस टाइम पे पैकेज होता था तालीम का। अच्छा, उस और ज़माने तरबियत में का। मार नहीं, प्यार का कल्चर नहीं था, तो बिल्कुल नहीं किसने था। ज़्यादा मारा आपको? हमारे मैथ के टीचर थे डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। हाँ। हाँ, वो बहुत सख्त थे। इसको उनकी वजह से मैथ अभी भी मेरा बहुत अच्छा है। वाह! लेकिन मैथ वाक़ई बहुत मुश्किल होता था मुश्किल होता। सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने वाक़ई बड़ी मेहनत की हमारे ऊपर। बहुत नाइस, बहुत अच्छे टीचर थे, सख्त बहुत थे लेकिन। हाँ, ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, कैसे बनेंगे लालो गोहर हम पे छोड़ दो। तो असातिज़ा ने यकीनन आपको इस मकाम तक पहुँचाया, तराशने ये वाले उनका होंगे, क्रेडिट है। बिल्कुल। अच्छा मोहतरमा डॉक्टर राबिया, आपसे सवाल ये है कि हामला ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और ख़ास तौर पर माह सियाम में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनकी से रहनुमाई ज़रूरी है, तो वो किस तरह रोज़ा रख सकती हैं? इस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को, मर्द व ख़वातीन को आगाह कीजिए। सर बहुत शुक्रिया, एक तो आपने यहाँ हमें मौका दिया, एक बेस फराहम की कि जिस पे हम इस तरह की कुछ बेहतर बातें कर सकें, और वो बातें जो हमारी माओं के जहन में होती हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर रही होती हैं उन्हें कि भाई ये क्या है। रोज़े के हवाले से फ़र्ज़ है, सब पे फ़र्ज़ है, लेकिन हमारा मज़हब जो है वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मतलब रिलैक्सेशन दी हैं। तो इसी तरह से जो माएँ हमल के साथ हैं, या वो माएँ जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो उन दिनों में रोज़े ना रखें और बाद में वो इसकी क़ज़ा रख सकती हैं। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ा रखें। शरीयत इजाज़त देती है। जब आपके अल्लाह ने आपको ये इजाज़त दे दी और आपको ये सहूलत दे दी, तो फिर आप इसमें क्यों कन्फ्यूज़ हैं? आपको एक सहूलत मिल गई है, आप वो सहूलत को से लुत्फ़अंदोज़ हो, अवेल करना चाहिए। और बिल्कुल आप अपने बच्चे को दूध पिलाएँ और अपना खाना-पीना सही रखें। ज़ाहिर है आप खाने-पीने में, अब जैसे हमारा रोज़ा है, सुबह मतलब तकरीबन 4:30 के 4:15 के करीब बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद हम 6:45 बजे खोलते हैं। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें काफ़ी टाइम है। इस दौरान अगर माँ कुछ भी खा पी नहीं रही है, तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँओं को हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि आप पीने वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर दफ़ा बच्चे को दूध पिलाने से पहले कुछ पिएँ, ताकि आपको भी पानी की कमी ना हो और बच्चे को भी दूध की मिकदार सही जाए। जब वो 15-16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं पिएगी, तो यकीनन बच्चे के ऊपर भी असर होगा और उसके अपने लिए भी बहुत मुश्किल है। इसी तरह से वो माएँ जो हमल के साथ हैं, वही मामला उनके साथ भी है कि वो बाहर पाल रही हैं, तो वो अंदर पाल रही हैं अपने अंदर। सही, बिल्कुल सही। उनके वजूद से ही बच्चे को जा रहा है ना। पानी की कमी से उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या मसाइल का सामना हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो इन दिनों में रोज़े ना रखें और बाद में अपने इन रोज़ों की क़ज़ा वो रख सकती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर महबूब रहमान, आपसे सवाल ये है कि इससे हुई यकीनन वो सेहतमंद माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं, ताहम खेल और वर्जिश का इन सारे मामलात में कितना किरदार है? खेल और वर्जिश का तो बहुत बड़ा किरदार है। गैर नसाबी सरगर्मियाँ अगर साथ साथ होंगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जिस्मानी तौर पे भी आप सेहतमंद रहेंगे, और ज़हनी तौर पे भी आपको बलूगत मिलेगी। तो अगर कोई भी बच्चा खेल में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेता है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, उसका स्टेमिना अच्छा हो जाता है, पढ़ाई में भी उसको मज़ा आता है, पढ़ने में भी, और टाइम ज़्यादा देता है वो पढ़ाई में भी। लेकिन ये थोड़ी-सी आजकल के उसमें माशरे में हमारी बदकिस्मती है कि जब हम लोग छोटे थे, हम उस उम्र में जब थे, तो हमारे वालिदैन हमें पकड़-पकड़ के घर लाते थे कि अब आ जाओ। अब हम अपने बच्चों को मिन्नत करते हैं कि बाहर चले जाओ, कमरे से बाहर निकले। कमरे से बाहर निकले, कुछ खेल लें। इस चीज़ की बहुत कमी है। मेरे ख्याल है वालिदैन को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। वो खुद बच्चों के साथ अगर दिलचस्पी लेके कुछ खेलेंगे, तो बच्चे भी बाहर निकलेंगे, और ये खेल कूद उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी जिस्मानी सेहत के लिए भी, और वैसे भी बहुत अच्छा है उनके लिए। अच्छा, आप दोनों से एक मुश्तरका सवाल ये है कि
जो बातें हम कर रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया के जो मनफी असरात हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों को मुतासिर कर रहे हैं। यानी हद ये है कि वो जो छोटा बच्चा है जिसने दूध पीना है, जब तक उसे मोबाइल पर कोई कार्टून लगा कर ना दिया जाए वो दूध नहीं पीता। अच्छा, माओं को भी सहूलत मिल गई कि भाई कार्टून लगा दिया और वो फीडर उसको पकड़ा दिया और वो खुद मोबाइल में गुम हो गए। तो क्या ये जो हमारी रविश है हम इसे किस तरह तर्क कर सकते हैं? आजकल के माहौल में इसको बिल्कुल तर्क करना तो बहुत मुश्किल हो गया। नेट, सोशल मीडिया, ये चीज़ें आ चुकी हैं। इसका लेकिन मुस्बत इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छे इस्लामी चैनल्स हैं और बहुत अच्छे इस्लामी कार्टून्स भी अब बनना शुरू हो गए एनिमेटेड। वो बच्चों को अगर लगा दिए जाएं तो बच्चों की तरबियत भी हो जाती है और बच्चे उससे सीख भी लेते हैं। खासतौर पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके अंदर बड़ा अच्छा है। उसके साथ साथ अगर वालिदैन कुछ थोड़ा खुद मोबाइल से हट के बच्चों को टाइम दें और बच्चों के साथ थोड़ा सा खुद टाइम गुजरे तो माँ बाप की तरबियत भी काश ऐसा हो जाए तो अच्छा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि माँ बाप को ये होता है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, खुद अपना काम कर लिया या खुद दूसरे मोबाइल पे अपना सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। ये काफी ज्यादा हो गया, बगैर वक्त नहीं गुजरता। हाँ जी, पहले तो ये होता था ना, जब हम छोटे थे हमने देखा था कि हमारे माँ बाप हैं वो हमारे साथ पूरा टाइम देते थे। अगर कोई टाइम है शाम का है तो हमारे साथ बाहर टहलने चले गए, वॉक करने चले गए, खेलने चले गए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वालिदैन कहते हैं बाहर जाने से अच्छा है कमरे में हमारी नज़रों के सामने तो बैठा है, बस मोबाइल पकड़ा दें। तो उसका मुस्बत इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि चैनल्स, जो इस्लामी चैनल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे, उनमें बड़ी खूबसूरत कहानियाँ सहाबा कराम की या दूसरी उस पे हैं, तो वो लगा दी जाए की बातें जो हम तक पहुँचती हैं। हाँ जी, तो बच्चे नेकी भी सीखेंगे, अच्छा भी है और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात को जरा आगे बढ़ाइएगा। चाह रही थी सर, हर दौर और हर वक्त के एक अपने तकाजे होते हैं। जिस तरह से अब हमने एक टाइम गुजारा, अब हमारे बच्चे गुजारे हैं। सर आपने वो टाइम गुजारा, आपके टाइम पे कुछ और चीज़ें थी, कुछ और तकाजे थे, हमारे वक्त में कुछ और चीज़ें थी। अब हमारे बच्चों के टाइम पे, अब जब हम थे तो उस टाइम पे हमें रोका जाता था टीवी ज़्यादा ना देखो, टीवी ज़्यादा ना देखो, रिसाले ना पढ़ो, इस तरह की चीज़ें। अब वो चीज़ें, वो वही तकाजे तब्दील हो गए हैं, बात वही है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि हर दौर के तकाज़ों को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको हम किस तरह अपने फ़ायदे में इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये चीज़ अहम है। ठीक है, हमारा बच्चा मतलब है वो अब इसी दौर में है तो उसने मोबाइल भी देखना है, उसने नेट भी इस्तेमाल करना है, उसने टीवी भी देखनी है। हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इस्लामी चैनल्स के हवाले से देख सकते हैं, उन्हें खेल कूद के हवाले से मतलब स्पोर्ट्स पे उनकी दिलचस्पी कर सकते हैं, बेहतर चीज़ें देख सकते हैं और हम उनके साथ बैठ के देख सकते हैं कि चलें इकट्ठे बैठ के देखते हैं, ये जिस चीज़ में उनको भी फ़ायदा हो। तो बजाय इसके कि भी हम इस पे थोड़ा हो कि नहीं इसको कम करें, ख़त्म करें, नहीं, हमें इसको उसी के हिसाब से आगे लेके एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कब नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये है कि देखिए ना, कोरोना के अय्याम में ऑनलाइन क्लासेस होती रही, अब वो सारा कुछ मोबाइल पर ही चल रहा है। और अब भी मेरे ख्याल में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कराते हैं। पे उसके ज़्यादा उनकी इनकम सोर्स भी यही होगा, कंप्यूटर, IT वगैरह। तो जब तक वो इससे ओरिएंटेशन नहीं लेंगे, जब तक उन्हें पता नहीं होगा, वो आगे कामयाब नहीं हो सकते। इसमें है कि साइंटिफिकली मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज वो भी देखी जा सकती हैं। तो ये बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कागज का जो तस्वुर है इसको खत्म कर दिया जाए और ये सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही ऑनलाइन किया जाए। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू सेहतमंद माशरे की तश्कील, और इसमें बहुत सारे अवामिल हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर महबूब रहमान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। माह सयाम में अगर कोई मरीज़ चाहे कि उसकी शुगर चेक की जाए, इंजेक्शन लगवाना है, कान या नाक में कतरे डालने हैं, आँख में खून का अतिया देना है, तो इसमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो शरीयत की उसकी इजाज़त देती है और कहाँ जो है वो रियायत मिलती है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। शरई एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी रोज़े में शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छा किया जा सकता है। कि अगर आपको शुगर है तो आपने बस जस्ट 16 घंटे का रोज़ा है तो बड़ा अच्छा है कि आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। बस उसमें यह एहतियात करनी है कि जो आप रूटीन में सुबह के टाइम दवाई खाते हैं वो अफ्तारी में ले लें, और जो रात को दवाई खाते हैं वो थोड़ा कम मिकदार में सहरी के टाइम ले लें। उससे कि रोज़े में शुगर भी लो नहीं होगी और कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा। शुगर के दौरान अगर आपको कभी महसूस होता है असर के टाइम, ज़ोहर के टाइम, कि आपकी शुगर लो हो रही है या कोई तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, और लेकिन कान में या नाक में अगर कतरे डालते हैं तो वो हलक में जा सकते हैं, उनसे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, वो नहीं डालने चाहिए। और इसी तरह जो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है वो भी ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस हमारे जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा ये रूटीन बन गई है कि रोज़ों में पकौड़े, समोसे, पराठा बहुत ज़्यादा चलता है। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो मैदा भी ख़राब करेंगी, सेहत भी ख़राब करेंगी, और अगर ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसको भी डिस्टर्ब करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन तस्वुर ये है कि जो हामिला ख़वातीन हैं उनका अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक्सरे भी कराया जाता है, तो जो मैंने सुना कि भी उसकी जो रेज़ हैं वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, माँ के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, क्या ये हकीकत है? हाँ जी सर, एक्सरे तो जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। एक्सरेज की जो रेज हैं वो नुकसानदेह होती हैं, और हमल वाली खातून का कुछ कोई ऐसा मसला हो गया है कि जिसमें बहुत ज़रूरी है एक्सरे, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया या इस तरह हो गया, तो वो शायद किया जाए, वरना इसके अलावा हमल के दौरान एक्सरे बिल्कुल भी नहीं करते हम। ठीक है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के हवाले से जो ये अबहाम है इनको क्लियर किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड की जो रेज हैं ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, और ना ही माँ के लिए। ये मतलब बेज़रर सी रेज हैं, और बल्कि अल्ट्रासाउंड जो है ये बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमल के दौरान 3 से 4 अल्ट्रासाउंड्स होने चाहिए, वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हम माँ को बताते हैं कि आपने करवाने हैं। एक तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है, वो बढ़ रहा है, किस तरह से है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। फिर अगर खुदा न खास्ता बच्चे के अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स पैदाइशी है, उसके बारे में हमें पता चल सकता है। इसके अलावा कुछ और मसाइल होते हैं कि जो हमें अगर टाइम पे पता चल जाए तो हम उनका बेहतर तरीके से तदारुक कर सकते हैं, और डिलीवरी के टाइम पे हम पहले से तैयार होते हैं कि अच्छा ये पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उसके लिए पहले से तैयार हुआ जाए, बजाय इसके कि हमें पता ही ना हो और हम उस पेचीदगी के उसमें आ जाएं। अच्छा, यहाँ एक सवाल मेरा और है कि अमूमी रवैया डॉक्टर्स का ये है कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, या जानबूझकर किया जा रहा है। माशरे में एक ये मतलब है कि लोगों के ज़हनों में ये है, तो ये तासुर आप किस तरह ज़ाहिर करेंगी कि ऐसा नहीं हो रहा? ये बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल किया है आपने, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पाकिस्तान के हवाले से नहीं कहूँगी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की बनिस्बत अब ऑपरेशन की रेशो बढ़ रही है कुछ हद तक निस्बतन। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही जा रहे हैं उस साइड पे, लेकिन ये है कि निस्बतन बढ़ रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और मैं अपनी डॉक्टर कबीले को भी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही कि वो हो जाते होंगे, कुछ हो जाते होंगे इस तरह के ऑपरेशंस, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें डॉक्टर बिल्कुल ही उस तरफ जा रहा है।
اس میں کچھ بہت بنیادی سی چیزیں ہیں جن کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھ لیں تو شاید ہماری کچھ سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں. ہمارے دیہاتوں میں ابھی بھی نارمل ڈیلیوری کی ریشو زیادہ ہے، شہروں میں کم ہے. اس کی وجہ وہاں پہ جو ماں ہے وہ چل پھر رہی ہوتی ہے. دیہاتوں کے آپ گھر دیکھ لیں، صحن دیکھ لیں، انہوں نے باہر بھی جانا ہے، کام کرنا ہے، صحن میں ہی پتہ نہیں کتنے چکر لگاتے ہیں، ہاتھ سے دھو رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، لپائی کر رہی ہیں، وزن اٹھا تو بالکل. لیکن ہمارے شہروں میں اگر آپ گھر دیکھیں تو اتنے چھوٹے سے گھر ہیں، اسی گھر میں ایک ہی کمرے میں سے آپ نکلیں تو واش روم ہے، دوسرے میں سے نکلیں تو کچن ہے. مطلب اس کی کتنی ایک وہ چل پھر لیتی ہوگی دن میں. اور آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں اس میں باہر جانا بھی کوئی اچھا تصور نہیں کیا جاتا. لوگ محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ میں محفوظ ہوں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹالرنس لیول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جہاں تک ہماری بچیوں کا نہیں ہے وہ ان میں نہیں ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہماری ماؤں میں بھی نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو ماں آ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نارمل ڈیلیوری ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اسے تکلیف ہونی ہے تو یہ تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کہ آپ آپریشن کر دیں. یہ اس میں بہت ساری یہ چیزیں انوالو ہیں جس کی وجہ سے یہ ریشو بڑھ رہی ہے. اس میں مطلب تھوڑا سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے. اگر اس سائڈ پہ جایا جائے تو پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے. ناظرین دیکھیں، یہ جو موازنہ دیہاتی اور شہری زندگی کا کیا گیا، یقیناً بات ایسی ہے کہ وہاں ورزش ہو رہی ہے، جسمانی کام ہو رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ آدمی کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اور شہر میں جو ہے وہ ایک گھٹن کا ماحول ہے، اور اسی چھوٹے سے گھر میں رہ کر جو ہے وہ ظاہر بات ہے ورزش نہیں ہو سکتی اور وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی بات جو ہے واقعی درست ہے. اچھا ڈاکٹر محبوب مناسب، جو ہمارے یہاں ماہ سیام میں خاص طور پر مریض ہیں، انہیں کون سی ایسی غذا لینی چاہیے جس سے ان کے وائٹامنس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں اور وہ روزہ جو ہے وہ ماشاءاللہ خیریت سے گزر جائے؟ ہاں جی، اس میں ہے کہ روزے کے لحاظ سے اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن بھی کنٹرول رہے، آپ کی صحت بھی اچھی رہے، کوئی بیماری بھی نہ ہو، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے آپ بچ جائیں، اگر موٹاپا ہے تو وہ ختم ہو جائے، تو اس میں یہ سب سے اچھی خوراک جو ہے آپ نیچرل فوڈ لیں. آرگینک فوڈ تو ویسے بھی اب زیادہ رجحان پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں کہ صبح آپ سادہ روٹی لیں دہی کے ساتھ، دودھ لیں، کھجور وغیرہ کھائیں افطاری میں، اس کے ساتھ فروٹس وغیرہ زیادہ لیں، اور نارمل غذا سادہ سالن، سادہ روٹی، سبزی کوئی بھی یا گوشت لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو پکوڑے، سموسے اور پیزا، برگر اور اس طرح ہے کہ بہت سارے پراٹھے کھا لینے پیٹ بھر کے، سحری کر لینی کہ جی یہ ایک پراٹھا ظہر تک چلا جائے گا، دوسرا اثر تک، تو باقی افطاری تک ہمارا گزارا ہو جائے گا، تو یہ چیزیں پھر بگاڑ پیدا کرتی ہیں. نہیں، اس میں حضرات تفنن ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یا آخری دفعہ کھا رہے ہیں. وہ ہمارا انداز یہی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو پاکستانی شادی پہ جائیں یا گھر میں کھائیں، وہ کھاتے اسی طرح کے جو ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 روپے دینے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم نے کھانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ گائنیکالوجسٹ ہیں تو اس حوالے سے جو زیادہ مریضائیں آپ کے پاس آتی ہیں، ان میں کوئی خون کی کمی والے جو مریضائیں ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح لیول جو ہے ان کا اوپر جا سکتا ہے؟ خون کی کمی جو ہے یہ ایک ہمارے حمل کے دوران یا ہمارے پاس جتنی بھی مریض آ رہی ہوتی ہیں، یہ ایک کامن مطلب کمپلینٹ یا شکایت کہی جائے جو نکلتی ہے. وہ ہمارے پاس جو شکایات یا جو اپنی علامات بتا رہی ہوتی ہیں وہ ان میں وہ بہت آرام سے اس کے اوپر فٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر خون کی کمی ہے. اور اگر ہم جیسے کمر کا درد ہے یا کمزوری کا محسوس ہونا ہے، تھکاوٹ بہت جلدی محسوس ہونا ہے، چہرے کا پیلا پن، یہ سارے، اور جب ہم ان کا یہ چیک کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اور وہ عموماً کم ہوتا ہے. اتنا کہ میں کہوں گی کہ بھی ایک ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کی جو خواتین ہوں گی ان کا بھی پورا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. اگر میرے سامنے کچھ ایسا ٹیسٹ آ جائے کہ جس میں ہیموگلوبن کا لیول بہتر ہے، 11 بھی کم ہوتا ہے، لیکن اگر 11 یا 12 ہے میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ اچھا یہ تو بہت اچھا ہے اس کا. ورنہ ہم لوگ 8، 9، 10 پہ، کبھی کبھار 7 پہ بھی چلی جاتی ہیں خواتین. اس میں سر ایک چیز جو مطلب میں پہلے بھی کرنا چاہ رہی ہوں، جس طرح سے آپ نے جو ہمارا یہ ہے کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل، اس میں
सबसे अच्छा और बेहतर मकूला तो वो यही है कि जी आप हमें पढ़ी लिखी और सेहतमंद माएँ दें तो आपको पढ़ा लिखा और सेहतमंद माशरा मिलेगा। बिल्कुल सही। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाली जो वो है शख्सियत है वो माँ ही है, वो खातून है कि वो खाने पीने में पूरे घर को खिला रही होगी, पूरे घर के लिए रख खुद नहीं खा रही होगी। दूध है तो वो मतलब उसकी ये कोशिश होगी कि उसका बच्चा पी ले, उसका शौहर पी ले, उसके लिए बचे ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो दूध बच्चे को पिला भी रही है या अगर वो हमल के साथ है तो सबसे पहले उसे देना चाहिए। अगर घर में गोश्त बन रहा है तो वो गोश्त सबको मिलेगा लेकिन उसके लिए नहीं होगा। इसी तरह से हाँ जी, फल का मामला होता है। तो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि माँ, एक तो माँ को अपनी अहमियत भी इस लिहाज से वो फिर माँ बहुत पीछे चली जाती है हर मामले। जब उसे खुद वो अपने लिए अपनी अहमियत उजागर ही नहीं करती तो उसकी नहीं आती सामने। बाद में घर वाले भी, शौहर भी, बच्चे भी उसे नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ख्याल रखें, बिल्कुल आप एक घर में एक सरबराह की तरह से हैं, आपने सबका ख्याल रखना है और आपकी जिम्मेदारी में शामिल है तो आप रखें, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर भी तवज्जो दें। बिल्कुल सही। आपने जो भी मंगवाया है उसके हिस्से करें, एक आपका हिस्सा अलग होना चाहिए, बाकी सबको दें। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि भाई आप किसी को ना दें, लेकिन अपने लिए भी जरूर रखें। इतनी मतलब आपको कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी जिंदगी सेहत ही गंवा बैठे। माँ की सेहत जो है वो बहुत जरूरी है सेहतमंद माशरे में। बिल्कुल सही। और वो उसे घर वालों को भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो मैं कहती हूँ आप खुद रखें अपना ख्याल। अच्छा, इसमें खून का लेवल बढ़ाने के लिए कोई आप टैबलेट्स भी दे? जी बिल्कुल, गोलियां देते हैं, लेकिन हम आप आजकल जैसे रोजे हैं इसमें खजूर, फलों में सबसे अच्छा खजूर है जो खून बढ़ाती है और ये मतलब बहुत आराम से मिल जाती है, बहुत महंगा फल नहीं है ये। आप दिन की 3-4 खजूर भी खा लें और वो मुतवातिर खाती रहें तो आपका खून का लेवल बहुत बेहतर रहेगा। इसी तरह से जैसे गोश्त है, गोश्त में बड़ा गोश्त जो है वो आपको मुनासिब उसमें भी मिल जाता है। अगर आप वो खाते हैं उससे आपका खून बेहतर रहता है। वो बेशक आप हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें, 10 दिन में 1 दफ़ा खा लें, इस तरह से। तो वो यही है कि भी अपनी खुराक में अगर ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जो बहुत महंगी भी नहीं है और आप कर भी सकते हैं तो आपका खून का लेवल बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर महफूज आसिफ, हमारे प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनके लिए अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई खुसूसी पैगाम जो है वो? एक तो रमज़ान के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग रोज़ा ज़रूर रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट खाएं, पकौड़े समोसे या तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। दूसरा, सेहतमंद माशरे का बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं या पाकिस्तानी कौम जितना शिद्दत पसंद होती जा रही है, जितना जज्बाती होती जा रही है और सेहतमंद माशरे से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं, हम एक कौम बन नहीं पा रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मुस्बत पैगाम दें, मुस्बत सोच रखें। सेहतमंद माशरा तश्कील देने के लिए नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं अपने असातिज़ा कराम से, अपने मौलवी हजरात से, मौलाना हजरात से और अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश करूँगा कि वो ख़ास तौर पे स्कूल के निसाब में ये चीज़ें ज़रूर शामिल करें कि उनकी अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी डॉक्टर राबिया, आप भी हमारे नाज़रीन को कोई खुसूसी मैसेज अपने तजुर्बात की रोशनी में? सर मेरा ये है कि सबसे पहले खुद अपने आप को, अगर मैं खुद को सही कर लेती हूँ तो मैं अपना घर सही कर सकती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं एक बेहतर तरीके से मतलब अपने बच्चों के सामने अपने आप को पोर्ट्रेट कर लेती हूँ तो मैंने अपना घर बेहतर कर लिया। मेरे लिए इतना बहुत है। अगर हर माँ, हर खातून और हर शौहर ये बात वो कर ले कि भी हमने अपने बच्चों के सामने और अपने घर को सही करना है, हमारा सारा माशरा सही ठीक हो सकता है। हमें किसी और को सही करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को, यानी अपनी जात से जो है वो तश्कील का अमल शुरू होता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, 2-3 बातें जो मेरे सामने थी कि इंसान दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा देता है और फिर सेहत के लिए दौलत खर्च हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। और एक बात और कि कम बोलना हिकमत, कम खाना सेहत और कम सोना इबादत। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिन पर अमल करके हम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील कर सकते हैं। डॉक्टर महफूज आसिफ, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम नाज़िशान में तशरीफ़ लाए, आपने खूबसूरत गुफ्तगू की। और मोहतरमा डॉक्टर राबिया उन्निसा आसिफ, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और आपने ख़वातीन के लिए
माशाल्लाह बहुत कारआमद बातें जो हैं वो की। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेज़बान राजा कौसर सईदी को प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान से इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.